My lovely students, welcome to Orthological. In this session, I'll be discussing some quantitative aptitude practice questions for XGMT examination. Start करते हैं session को. And if you've not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel और साथ में also like this session if you're liking the content. You can also join Telegram channel or WhatsApp channel Methodological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of the day, pause the video and try to solve it. So question is basically a statement based question. There are two statements and we have to identify which statements out of these are true. First statement, two positive integers differ by 4 and the sum of their reciprocals is 10 by 21. So 3 is one of the numbers. अभी true है या नहीं है आइडेंटिफाई करना है. दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाई 4 and sum of their reciprocals is 10 by 21. So if one of the numbers is let us say a, other number is a plus 4 because difference 4 का है, ठीक है. So their reciprocals will be 1 by a plus 1 by a plus 4 and their sum is equal to 10 by 21. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से. बट क्या ये बेटर अप्रोच है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाय 4 एंड देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 10 by 21. ओके, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? इफ वी आर एडिंग 1 by a and 1 by a plus 4, तो डिनोमिनेटर विल बी a into a plus 4 और न्यूमिनेटर विल बी a plus a plus 4 अपॉन a into a plus 4. पर इतना कहानी करने के पहले ही हम सोच सकते थे कि 21 इज अ स्पेशल नंबर. स्पेशल क्यों है? ये 21 कैन बी 3 into 7 या फिर 1 into 21. पर 3 into 7 करते ही हमें शक्ल दिख रही है कि 4 का डिफरेंस आ रहा है बिटवीन 3 and 7 एंड न्यूमरेटर इज 3 plus 7. तो क्लियरली दिस इज 1 by 3 plus 1 by 7. क्या इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत है? क्या इसके लिए अननोन एज्यूम करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत. तो हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं नंबर्स विल बी 3 and 7 फॉर श्योर एंड हेंस 3 इज वन ऑफ द नंबर्स. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, सॉल्व करके भी वही मिलेगा बट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. उतना टाइम क्यों लगाना है जब स्ट्रेट अवे में दिख रहा है कि 10 by 21 है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी तुम्हें शक्ल दिख रही है कि 35 है, लेट अस से होता है कि 12 by 35. So we know 35 is 5 into 7. So this is definitely 12 is 5 plus 7. So this is 1 by 5 plus 1 by 7. अब इसके लिए अननोन मान के सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है. डायरेक्टली एज्यूम कर लेंगे ये बात, डायरेक्टली समझ लेंगे इस बात को. इज दैट सो? Second statement, three consecutive positive even numbers are such that thrice of the first number exceeds double the third number by 2, then third number is divisible by 7. So we have to identify third number कि third number हमारा divisible by 7 होगा या फिर नहीं होगा. It is a even number also. Three consecutive positive even numbers. तो अगर first number हमने assume कर लिया a, second will be a plus 2 and third will be a plus 4. And given है कि thrice the first number यानी कि 3 times a exceeds double the third minus 2 times the third number, यानी 2 times a plus 4 and this difference is equal to 2. So 3a minus 2a is equal to a minus 8 is equal to 2, so a will be equal to 10. And if a is equal to 10, so a plus 4 is the third number which will be equal to 14. And yes, 14 is divisible by 7. So second statement is also correct. Both first and second statements are correct. Option C will be the answer. Is that clear? ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, I live X floors above the ground floor of a high-rise building. It takes me 30 seconds per floor to walk down the steps and 2 seconds per floor to ride the lift. What is X if the time taken to walk down the steps to the ground floor is same as to wait for the lift for 7 minutes and then ride down? So walking down में जो time लग रहा है same time लग रहा है when the person is waiting for the lift for 7 minutes and then riding down. ठीक है, because 30 seconds per floor is the time taken to walk down. ओके, तो क्या इक्वेशन बनेगा हमारा? इफ देयर आर एक्स फ्लोर्स इन टोटल, तो टोटल टाइम टेकन क्या होगा इन वॉकिंग डाउन? दैट विल बी 30 into x इन सेकंड्स 30x. एंड सेकंड केस में व्हेन ही इज गोइंग वाया लिफ्ट, तो 7 मिनट्स के लिए तो वेट कर रहा है, तो 7 into 60 420 मिनट्स, तो 420 सेकंड्स तो उसने वेट किया प्लस 2 seconds फॉर पर फ्लोर, तो प्लस 2 into x एंड दीज टू शुड बी इक्वल. तो 30x minus 2x 28x. This is equal to 420 and hence x is equal to 15. x is equal to 15 will be answer. Option D आंसर हो जाएगा. ओके, क्योंकि फ्लोर्स का नंबरिंग क्या होता है? ग्राउंड यानी 0 देन 1 2 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. x इक्वल 15 ही आंसर होगा, 14 आंसर तो नहीं होगा. एक और बात कि ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा था कि वेट फॉर 7 मिनट्स एट द स्टार्ट इटसेल्फ. ठीक है, तो 30 सेकेंड्स पर फ्लोर के हिसाब से भी 14 फ्लोर्स ट्रैवल करेगा
7 मिनट्स में, isn't it so? तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 14 फॉर श्योर। तो एक ही ऑप्शन हमारा ग्रेटर देन 14 था, तो डेफिनेटली 15 वाज आंसर फ्रॉम वेरी स्टार्ट, क्योंकि 14 से बड़ा वैल्यू आंसर होना था, क्योंकि 30 सेकंड्स पर फ्लोर के हिसाब से 7 मिनट्स में तो 14 फ्लोर ट्रैवल करेगा वो, और 7 मिनट्स तो वेट ही कर रहा है, उसके बाद में फिर लिफ्ट में चढ़ रहा है। So total time taken will be more than 7 minutes, and hence total number of floors or x will be greater than 14 for sure, and hence answer will definitely be 15। तो उसके लिए इक्वेशन बनाने का अगेन हमें जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन में, बिना इक्वेशन बनाए भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? छोटी छोटी बातें अप्रिशिएट कर पा रहे हो हर एक क्वेश्चन में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, बट ये ऑब्जर्वेशन कई बार हमें बहुत हेल्प करता है क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में भी यही सेम बात हम समझेंगे। व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 9, 15, 21 एंड 31, द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रपोर्शन। सो व्हाट इज द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन द नंबर्स 3x - 2 एंड 5x + 4? नंबर्स इन प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ? इफ देयर आर 4 नंबर्स इन प्रपोर्शन a b c d, and that implies that a is to b is equal to c is to d. a by b, this is equal to c by d. So when we are adding x to all these numbers 9, 15, 21 and 31, the numbers obtained are in proportion. So add x to all these numbers. So numbers will be x plus 9, then x plus 15, then x plus 21 and x plus 31. These numbers are in proportion. यानी कि x plus 9 upon x plus 15, this will be equal to x plus 21 upon x plus 31. Now cross multiply. So x square plus 31x plus 9x, यानी plus 40x plus 31 into 9, which will be 279. This will be equal to x square plus 21x plus 15x, so plus 36x plus 350. X square gets cancelled out. So 40x minus 36x, which will be equal to 4x, and this is equal to 15 plus 21, 36. Okay, 4x is equal to 36 and then x will be equal to 9. यहाँ से मैं x का वैल्यू मिल गया, that x will be equal to 9. क्वेश्चन पूछ रहा है मीन प्रपोर्शनल ऑफ दीज टू नंबर्स। 3x - 2 क्या हो जाएगा? दिस विल बी 27 - 2 25, एंड 5x + 4 विल बी 45 + 4 49. तो मीन प्रपोर्शनल अगर हमारे दो नंबर्स हैं, लेट अस से p and q, so mean proportional is square root of pq, because p by mean proportional is equal to mean proportional by q. That is why m square is equal to pq, and hence m is equal to root pq. रूट pq निकालना है, क्या आएगा? रूट ऑफ 25 इंटू 49. गैंग वॉर हो गई लग रहा है। 5 इंटू 7 35, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा। 35 आंसर हो गया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्या ही क्लियर है? ठीक है, 35 विल बी आवर आंसर। अब ये तो हो गया इसको कन्वेंशनली सॉल्व करने का तरीका, बट अगर हम ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं तो चीज़ों को और भी आसान कर सकते थे, या अदरवाइज भी पहले ऑब्जर्वेशन से पहले भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, प्रोपोर्शन कंपोनेंट डिविडेंड जैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो उन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर इसके अंदर ऑब्जर्वेशन का स्किल भी देखेंगे, जहाँ से इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बनाया जा सकता था। कि फॉर एग्जाम्पल हम इस इक्वेशन में पहुंच गए कि x + 9 अपॉन x + 15 इज इक्वल टू x + 21 डिवाइड बाई x + 31. ओके, सो वी कैन राइट दिस एज x + 15 अपॉन x + 9. भाई रेशियो तो a by b इज इक्वल टू c by d लिखो, या b by a इज इक्वल टू d by c, बात तो एक ही है। ठीक है, तो x + 15 अपॉन x + 9 इज इक्वल टू x + 31 अपॉन x + 21. नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा? Which is same as कि if a by b is equal to c by d, then we can also conclude that a minus b by b is equal to c minus d by d. Isn't it so? ठीक है, सो सेम काम यहाँ पे करें, तो x + 15 माइनस x + 9 क्यों किया हमने? क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि हमारा x रिमूव हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 6 अपॉन x + 9 एंड दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन x + 21. नाउ 3 and 5 रिमेनिंग बचा, तो 3 इंटू x + 21 यानी 3x + 63, दिस इज इक्वल टू 5x + 45, एंड हेंस 2x इज इक्वल टू 18, तो x विल बी इक्वल टू 9. चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो गई, इजंट इट सो? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो ये एक तरीका हो सकता था। और भी आसान कैसे कर सकते थे? बिकॉज हम प्रपोर्शन में बात कर रहे हैं, तो क्योंकि जब भी चीजें प्रपोर्शन में है, व्हेन वी आर सेइंग a by b is equal to c by d, तो कैन यू से कि c by d बेसिकली क्या होगा? c मस्ट बी सम मल्टीपल ऑफ a. ठीक है, नॉट इंटीजर मल्टीपल, बट कुछ
a मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट एंड d विल बी b मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, तभी तो a बाई बी इज इक्वल टू c बाई d, है कि नहीं? तभी तो ऐसा है। तो c मस्ट बी सम मल्टीपल ऑफ a एंड d मस्ट बी सम मल्टीपल ऑफ b, तभी तो c बाई d विल बी इक्वल टू a बाई b। ओके, तो अगर 9 और 15 में हम डिफरेंस देखें, क्योंकि हम सारे के सारे नंबर्स में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग x इन ऑल केसेस, सब में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, जो डिफरेंस है हमारा वो तो चेंज नहीं होगा ना, नंबर्स चेंज हो जाएंगे, बट जो डिफरेंस है वो तो वही रहेगा, बिकॉज 9 में भी x ऐड होगा, 15 में भी x ऐड होगा, तो डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, सेम रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर 21 एंड 31, डिफरेंस और 21 और 31 का x ऐड करने के बाद भी सेम ही रहेगा, तो फर्स्ट टू नंबर्स में डिफरेंस है 6, सेकेंड टू नंबर्स में डिफरेंस इज 10। फर्स्ट टू नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है 6 का, और बाद के दो नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो 6 एंड 10 का रेशियो क्या आ रहा है? 3:5 का रेशियो आ रहा है कि नहीं? क्या ही क्लियर है? तो डिफरेंस तो हमारा चेंज नहीं होने वाला, डिफरेंस तो 6 और 10 का ही रहने वाला है, यानी इफेक्टिवली 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 21 प्लस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 6/10 ओनली और 3/5। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज 9 प्लस एक्स by 15 plus x, this is equal to 21 plus x by 31 plus x, but this difference here, this is equal to 6, this difference here, this is equal to 10. So if these are equal to, let us say, a by b, some ratio a by b, so difference अगर हमारा 6 का आ रहा है, so we can say somehow कि if this is equal to a by b, तो ये जो रेशियो है हमारा, this will be somewhat, let us say, अगर a और b के बीच का डिफरेंस, या और इसको सिंप्लीफाई करें, सो अगर a और b को हम इतना सिंप्लीफाई कर लें कि इनके बीच का डिफरेंस 1 का ही है एग्जैक्टली, कि इफ दिस वाज इक्वल टू a अपॉन a प्लस 1, तो अगर डिफरेंस 1 रखेंगे तभी तो कोई रेशियो बनेगा इनका। ठीक है, a अपॉन a प्लस 1 अगर ये है, सो इन दैट केस वी कैन से, अभी डिफरेंस 6 का आ रहा है, सो दिस विल बी बेसिकली 6a अपॉन 6a प्लस 6, एंड दिस वैल्यू हियर, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 10 का आ रहा है, सो दिस विल बी समहाउ 10a, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10a अपॉन 10a प्लस 10। इतना तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना नहीं करोगे, बस इस समझ के साथ में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, कि 9 प्लस एक्स अपॉन 29 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 6/10 और 3/5। ठीक है, सो सेम चीज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड दैट वे वी कैन कंक्लूड कि 6a/10a विल बी इक्वल टू 6/10 और 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेशियो होगा 9 प्लस एक्स बाई 21 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 3/5, और अगर 3/5 है, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू 3 यूनिट्स है और नीचे वाला वैल्यू 5 यूनिट्स है, तो डिफरेंस इज 2 यूनिट्स, और डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 12 का, तो 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 12, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6, एंड इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 6, तो फिर 3 यूनिट क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी 9 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 18, तो एक्स विल बी इक्वल टू 9। क्या किया हमने कि 9 प्लस, यही सेम काम 15 में भी कर सकते थे, क्योंकि वहां उसके लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा कि 15 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 31 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 6/10 और 3/5। तो डिफरेंस है यहाँ पे 2 यूनिट्स का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 16 का, तो 1 यूनिट मस्ट बी इक्वल टू 8, तो 3 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 24, and hence 15 plus x will be 24 and x will be equal to 9. Okay, क्या ही क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ अ लैडर is exactly equal to the height of the wall it is leaning against, यानी कि height of the wall and the length of the ladder are equal. If lower end of the ladder is kept on a stool of height 3 meters and the stool is kept 9 meters away from the wall, the upper end of the ladder coincides with the top of the wall, then height of the wall क्या होगा? Lower end of the ladder is kept on a stool of height 3 meters. The height of the stool is 3 meters, and then after that the stool is kept 9 meters from the wall, so this distance is 9 meters. The upper end of the ladder coincides with the top of the wall. Okay, so this is the scenario, this is our ladder, upper end coincides with the top of the wall, और ladder का height और height of the
wall is same. So if height of the ladder is equal to h, so this total height here, this will also be equal to h, and this is 3, क्योंकि ये तो height of stool है. So remaining height will be, भाई ये right angle triangle form होगा, this will be h minus 3, and this here is 9. तो एक तरीका है पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, ठीक है. एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू h minus 3 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और सॉल्व कर लूँगा इसको. और या फिर सीधे ही देखो कि 9 हमारा किस पाइथागोरस ट्रिपलेट में आएगा. 9 आता है 9, 12, 15 में, ठीक है. 9, 12, 15 में आता है, और वहाँ पे 12, 15 के बीच का गैप कितना है, 3 का गैप है, जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को. डेफिनेटली दिस मस्ट बी द केस, है कि नहीं. अदरवाइज आने को तो 20, 21 में भी आएगा 9, बट यहाँ पे गैप सिर्फ 1 का ही है. सो दैट इज वाई आंसर हमारा क्या होगा, 15 विल बी द हाइट, h विल बी इक्वल टू 15, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि h 15 होगा. इफ दिस इज 15, दिस ईयर विल बी 12, और ये तो बेस तो 9 है. अदरवाइज सॉल्व कर लो कि h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस 81. सो h स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, 6h इज इक्वल टू 90, सो h विल बी इक्वल टू 15. क्योंकि सॉल्व करने में कोई टिपिकल नहीं है, बट ये चीज़ ऑब्जर्व कर लोगे तो विद इन सेकंड्स हो जाएगा, विद इन 2 सेकंड्स हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्व करोगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द मिनिमम ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 6 माइनस 3x व्हेन x इज पॉजिटिव क्या होगा, वेदर दैट विल बी इक्वल टू 1 और 2 और 3 और 4. लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द मिनिमम फंक्शन ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 6 माइनस 3x फॉर x शुड बी पॉजिटिव. अगर x पॉजिटिव वाला कंडीशन नहीं होगा तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, दिस विल बी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और 6 माइनस 3x इज अ लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा. और हमें चाहिए मिनिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू जब जिसका होगा वही हमें इंक्लूड करना है, मिनिमम ऑफ दीज टू. तो जब 2 प्लस एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा, लोअर होगा, तब उसकी वैल्यू लेंगे. जब 6 माइनस 3x मिनिमम होगा तब उसकी वैल्यू लेंगे. जब दोनों ही इक्वल होंगे तब किसी की वैल्यू ले लो. So basically this function will be like this. In the first part, before the first intersection, we'll be taking the line. उसके बाद में सेकंड, फर्स्ट से सेकंड इंटरसेक्शन के बीच में we'll be taking the quadratic function, क्योंकि वो लोअर हैंग पे होगा, और फिर एंड द एंड लाइन अगेन. तो ये हमारा पूरा प्रोसेस बनेगा, बट हमें चाहिए x ग्रेटर देन 0 के लिए. फिर पूरा ग्राफ तो बनेगा नहीं उस केस में. x ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए, तो x इक्वल टू 0 वैल्यू देख लो क्या आ रहा है. तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 2, एंड देन सिंस 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो दिस विल कीप इंक्रीजिंग, ये तो इंक्रीज करता रहेगा लगातार. 6 माइनस 3x एट x इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 6, और ये तो डिक्रीज करेगा. सो ग्राफ हमारा क्या होगा, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू इंटरसेक्शन पॉइंट द पैराबोला इज लोअर, तो ये रहेगा ग्राफ में, और फिर इसके बाद में लाइन रहेगी. तो दिस इज आवर ग्राफ. क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही डिफ्लेक्शन होता है. भाई यहाँ पे पूरा ग्राफ भी होता तब भी इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, बट इस केस में मिनिमम वैल्यू हमारा इन्फाइनाइट हो जाता. अगर पूरा एक्स इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी देखते तो लाइन तो चलता जा रहा है, तो अल्टीमेटली प्लस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. तो इसीलिए क्वेश्चन ने लिमिट किया है कि एक्स पॉजिटिव के लिए ही हमें आंसर करना है. और व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम फंक्शन विल बी दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम फंक्शन. तो ये कहाँ पे आएगी, जबकि दोनों ही वैल्यूज इक्वल होंगी. 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 3x होगा. सॉल्व कर लेते हैं. 2 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 3x. सो 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे क्या रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे जिनका कि सम होगा -3 और प्रोडक्ट हुआ -4, यानी कि -4 एंड +1. दीज आर द रूट्स. अब क्योंकि हमें x ग्रेटर देन 0 लेना है तो +1 विल बी एक्सेप्टेड, -4 तो होगा नहीं. बट ये +1 क्या है, हमें ये +1 मिला है रूट या इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि x इज इक्वल टू +1 इज वेयर दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज देयर. ये वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना. x इक्वल टू 1 आंसर नहीं है, बिकॉज ये मिस्टेक बहुत सारे लोगों से होगा कि यहाँ तक सॉल्व किया फिर गलत आंसर मार्क कर दिया. x इक्वल टू 1 है, अब x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, और क्योंकि x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों ही
फंक्शंस की वैल्यू 2 प्लस एक्स स्क्वायर और 6 माइनस 3x की वैल्यू इक्वल है, तो किसी भी एक पे वैल्यू पुट कर दो, तो 2 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, नॉट 2, 3। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इतने ईजी थे, 1 2 3 4 4 ही ऑप्शन अवेलेबल थे, नॉट दीज ऑप्शन था नहीं, तो हम ऑप्शन से भी जा सकते थे। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से भी जा सकते थे। हमें क्या चाहिए था? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द मिनिमम, मिनिमा की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, 1 2 3 4, और क्योंकि दो में से एक फंक्शन हमारा लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में वैल्यू पुट करना भी आसान होता है, क्योंकि ये वैल्यूज हमें किसकी दी हैं? ये वैल्यूज हमें फाइनल वैल्यूज दी हैं मिनिमम फंक्शन की। ठीक है, मिनिमम फंक्शन की वैल्यूज दी हैं 1 2 3 4, मिनिमम फंक्शन की वैल्यूज दी हैं। तो हम एक काम कर सकते थे कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा 6 माइनस 3x में अगर ये मिनिमम फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू है और लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम 4 से स्टार्ट करते। ऑप्शन से अगर जाएंगे तो क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो 4 से स्टार्ट करते, सबसे पहले 4 पुट करते। तो 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x पुट करो, तो 3x comes out to be equal to 2, and hence x comes out to be equal to 2 by 3. So if largest value of the minimum function is equal to 4, in that case वो कहाँ पे आ रहा है? x over 2 by 3 पे आ रहा है। बट x over 2 by 3 पे अगर वो आएगा तो जो सेकंड वैल्यू है यानी कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू एट x over 2 by 3 मस्ट बी ईदर मोर देन दिस और इक्वल, या तो इससे ज्यादा होगा या इक्वल होगा, तभी तो मिनिमम फंक्शन की वैल्यू हम 6 माइनस 3x की लेंगे, क्योंकि मिनिमम फंक्शन है। तो x over 2 by 3 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 plus x square comes out to be 2 plus 2 by 3 whole square, which will be 2 plus 4 by 9, which is less than 4। और अगर 4 से लेसर वैल्यू आ रहा है तो क्लियरली मिनिमम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2 plus 4 by 9 होगी, 4 थोड़ी होगी। Isn't it so? यानी कि 4 हमारा लार्जेस्ट वैल्यू नहीं होगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? पर ये अगर ऐसे समझ में आ रहा है तभी ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, बस एक डिफरेंट अप्रोच भी देख रहे हैं हम कि ये भी तुम्हें देखना समझ में आ सके। अदरवाइज सॉल्व तो ऐसे कर ही सकते हो कि इसको कोई खास टाइम नहीं लगना है, ऐसे भी सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, अब 3 पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 पे 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, पुट किया x इक्वल टू 1 वैल्यू 2 प्लस एक्स स्क्वायर पे, तो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 3, बोथ आर इक्वल टू 3, तो यस दिस मस्ट बी द आंसर। इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यही आंसर होगा, कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे थे और 4 को हमने चेक कर लिया, 4 आंसर हो नहीं सकता, 3 से बड़ा कोई वैल्यू ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो 3 मस्ट बी द आंसर, दैट इज द लॉजिक। ओके, अगर नव दिस गिवन होता तब फिर ऐसे बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकते थे, क्योंकि नव दिस गिवन नहीं था, वैल्यूज बहुत सिंपल थी और एक लीनियर फंक्शन गिवन था, तो हम ऐसे भी ट्राई कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A stockist wants to make some profit by selling sugar. He contemplates about various methods. Which of the following would maximize his profit? First, sell sugar at 10% profit. Second, use 900 grams of weight instead of 1 kg. Third, mix 10% impurities in sugar and selling sugar at the cost price. And fourth one, increase the price by 5% and reduce weights by 5%. तो फोर्थ में डबल प्रोसेसिंग कर रहा है। हर एक केस में कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज, तभी तो पता चलेगा कि हमें मैक्सिमाइज किस केस में प्रॉफिट होगा। फर्स्ट केस, सेलिंग शुगर एट द 10% प्रॉफिट, तो डायरेक्टली हमें प्रॉफिट का वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट इज इक्वल 10% इन फर्स्ट केस। सेकंड केस, यूज 900 ग्राम्स ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला केस है, 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी कि पैसा लो 1 kg का बट आइटम दो सिर्फ 900 ग्राम्स का। इजंट इट सो? तो अगर तुम आइटम सिर्फ 900 ग्राम्स का दे रहे हो तो कॉस्ट क्या लग रहा है? 900 ग्राम्स का, बट पैसा ले रहे हो 1 kg का, और कुछ नहीं कर रहे हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहे हो एज पर द गिवन कंडीशन इन सेकंड। ठीक है, सो 9 रुपीज इज योर कॉस्ट एंड, या फिर 900 ग्राम्स इज योर कॉस्ट एंड 1000 ग्राम्स, 900 एंड 1000 नहीं, 1000 ग्राम्स यू आर टेकिंग अमाउंट फॉर। ठीक है, सो 9:10, यानी कि 9 तुम्हारा कॉस्ट है और 10 इज द वैल्यू दैट यू आर टेकिंग। सो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ ऑन 9, 9 क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 1/9, 11.11% प्रॉफिट होगा इस केस में, सेकंड केस में। ओके, थर्ड केस, मिक्स 10% impurities in sugar and selling sugar at the cost price. थर्ड केस में क्या कर रहे हो? 10% impurities ऐड कर रहे हो शुगर में। सो इफ यू आर एडिंग 10% impurities, इन दैट केस क्या हो रहा है कि शुगर अगर तुम्हारे पास 1 kg था, 1 kg शुगर प्लस 100 ग्राम्स impurities, एंड impurities को भी किस कॉस्ट पे सेल कर रहे हो? शुगर के कॉस्ट पे ही सेल कर रहे हो, तो ये impurity तुम्हारा प्योर प्रॉफिट है।
प्योर प्रॉफिट है, यही तो प्रॉफिट ही है तुम्हारा, क्योंकि यू आर सेलिंग एट द कॉस्ट प्राइस, isn't it so? So if you are selling 1100 grams, तो तुम्हारा कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 1000 ग्राम्स का, यानी कि कॉस्ट और सेल्स का रेशियो क्या है? 10:11, 1 का प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पे अगेन 10% प्रॉफिट होगा, इस केस में भी 10% प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10% इंप्योरिटीज ऐड कर रहा हो। सेम एज जैसे मिल्क में वाटर ऐड करता है, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन जैसे मिल्क में वाटर ऐड करता है, अगर वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे इंप्योरिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कॉस्ट प्राइस से सेल कर रहे हो, तो वहां पे प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू एडेड वाटर। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू एडेड इंप्योरिटीज, ठीक है। फोर्थ केस, इंक्रीज द प्राइस बाई 5% एंड रिड्यूस वेट्स बाई 5%, यानी कि दो केसेस हो रहे हैं यहाँ पे। इंक्रीजिंग द प्राइस बाई 5%, अब प्राइस को 5% इंक्रीज किया है, यानी कि 1/20 से इंक्रीज किया है, तो इसकी वजह से इफेक्ट विल बी 20:21। 20 इज द कॉस्ट, 21 इज द टोटल अमाउंट टेकन, यानी कि 1 का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली रिड्यूस वेट बाई 5% एज वेल, यानी कि वेट को भी 5% से रिड्यूस किया है, यानी कि वेट को 20 से 19 कर दो, तो उसकी वजह से ही प्रॉफिट होगा। तो 19 विल बी द कॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट, और 20 तुम अमाउंट ले रहे हो, नेट इफेक्ट क्या आएगा? 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 विल बी कॉस्ट एंड 21 विल बी सेल्स। तो 19 से 21 हुआ, 2 का प्रॉफिट आया, 2/19 विल बी प्रॉफिट परसेंटेज विच विल बी 200/19, जो कि आ गया 10 एंड 10/19, यानी 10.5% रफली 10.5%। क्वेश्चन पूछ रहा था मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो रहा है सेकंड ऑप्शन में, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, मैक्सिमाइज होगा इन केस ऑफ सेकंड, ठीक है। सेकंड में मैक्सिमम है, उसके बाद में प्रॉफिट हमारा आ रहा है इन फोर्थ, देन फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वल, ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। Next question. Amit sold an article for rupees 369.60 after allowing 12% discount on the mark price. Had he not allowed any discount, he would have earned a profit of 20%. What is the cost price of the article? So after allowing 12% discount on the mark price, Amit sold an article for rupees 369.60, यानी कि 88% of the mark price. This is equal to 369.60. And if he had not allowed any discount, then he would have earned a profit of 20%. 20% का प्रॉफिट होता है एट द मार्क प्राइस, 20% यानी कि 1/5 का प्रॉफिट होता है, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट होता है, जबकि मार्क प्राइस पे सेल किया होता है। तो CP इफ दैट इज इक्वल टू 5, तो SP इन दैट केस वुड हैव बीन इक्वल टू 6, और SP क्या है? मार्क प्राइस ही तो है, यानी कि मार्क प्राइस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स इफ CP इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, और हम यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे इस केस से, और CP विल बी 5/6 ऑफ दैट, तो कॉस्ट प्राइस विल बी 5/6 ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होगा? 88% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 369.60, 88% हुआ हमारा 22/25, तो मार्क प्राइस विल बी 369.60 इंटू 25/22, और उसका 5/6 होगा CP। सिंप्लीफाई कर लो, ओके। पहले 6 से काटा पीटी मचा देते हैं, सो डेसिमल जाएगा, 00 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, तो 6 से यहाँ पे बचेगा 616, फिर 22 से चला जाएगा, तो या तो 11 से कर लो या फिर 22 से एक साथ कर लो, 22 3 ज़ार 22 ज़ार 44, और फिर बच गया हमारा 176, तो 28, तो 28 और 28 इंटू 25/2 और 14 इंटू 25 विच विल बी ₹350, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are acid and water solutions. The ratio of water and acid in A and B are 4:5 and 1:2 respectively. If X liters of A is mixed with Y liters of B, then ratio of water and acid in the mixture becomes 8:13. So what is X is to Y? So A and B are acid and water solutions. और A में acid और water का रेशियो क्या है? 4:5 है। B में that ratio is 1:2. 4 plus 5 that is equal to 9. 9. 1 plus 2 is equal to 3. तो पहले तो दोनों को इक्वल करोगे, क्योंकि एज पर द रेशियो इन ए 9 लीटर्स अगर टोटल मिक्सचर है हमारा, तो 4 लीटर्स एसिड है, 5 लीटर्स वाटर है, बट बी में 3 लीटर्स ही लिया है हमने, तो पहले बी को भी तो 9 लीटर्स करोगे, मल्टीप्लाई बाई 3, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 3,
एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 6. 3 और 6 हो गया. ठीक है, अब इक्वल हो गया, बट हमें इक्वल नहीं लेना, हमें लेना है x लीटर्स ऑफ ए एंड y लीटर्स ऑफ बी. ओके, तो x लीटर्स ऑफ ए लो और y लीटर्स ऑफ बी लो, या फिर इक्वल तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इक्वल करने के बाद में मल्टीप्लाई बाय x ऑन द फर्स्ट आइटम और सेकंड को y में से मल्टीप्लाई कर दो, तो बात तो वही है. या तो x और y ले लो, या फिर 2x और 2y लो, या 3x और 3y लो, या 4x और 4y लो, एज लॉन्ग एज रेशियो हमारा x इज टू y का रहता है ए और बी में, तो रेशियो हमारा फाइनल जो होगा दैट विल बी 8:13 ओनली. तुमने x और y लिया हो तब भी, 2x और 2y लिया हो तब भी, 9x और 9y लिया हो तब भी. ठीक है, सो हम डायरेक्टली x और y से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्टीमेटली. क्या क्लियर है? तो क्वांटिटी हमारा ए में क्वांटिटी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4x एंड 5x, और बी में हो जाएगा x इंटू 3 एंड सॉरी x नहीं, बी में तो y है, सो y मल्टीप्लाई करोगे बी में, तो टोटल एसिड विल बी 4x प्लस 3y एंड टोटल वाटर विल बी 5x प्लस 6y एंड फाइनल रेशियो आ रहा है हमारा 8:13. इक्वेट कर दो, 4x प्लस 3y डिवाइड बाई 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 8/13. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि वैल्यू आ जाएगा. और जब भी ऐसा केस है, हमें पता है क्योंकि रेशियो है, रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि x का कोफिशिएंट देख लो, 4 इंटू 13 52 और 5 इंटू 8 40. 52 माइनस 40 करोगे 12x. सिमिलरली 3 इंटू 13 39 और 48, तो डिफरेंस आ रहा है 9 का, तो 12x इज इक्वल टू 9y. तो x बाई वाई विल बी इक्वल 9/12 विच इज इक्वल टू 3/4. x बाई वाई विल बी इक्वल टू 3/4. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. बट ऐसे तभी कैलकुलेशन करना जहाँ पे कि वैल्यूज हमारी सारी पॉजिटिव आने वाली है, तो डिफरेंस के हिसाब से सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज नेगेटिव भी हो सकता है वैल्यू, तो ये ध्यान रखना. ठीक है, कैलकुलेशन में गलती भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज करोगे तो फिर कॉशियस रहना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को कहाँ लेके जा रहे हो, तो दैट नेगेटिव आए तो वैल्यू नेगेटिव कर सको तुम वहाँ पे. ठीक है, आंसर विल बी 3/4 इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 to the power 6 minus x is minus 1 is divisible by which of the following values? 5 to the power 6 minus 1. अब इसको देखने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देखो कि दिस इज 5 to the power 6 माइनस 1 to the power 6, पावर तो इक्वल कर लो पहले. अब इसको लिख सकते हो या तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसी एक फॉर्म में देख लेते हैं. ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देख लेते हैं, हो सकता है वहाँ से ही चीज़ें रियलाइज हो जाए. तो वी कैन राइट दिस एज 5 क्यूब होल स्क्वायर माइनस 1 क्यूब होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 5 क्यूब माइनस 1 इंटू 5 क्यूब प्लस 1. 5 क्यूब इज 125, तो 124 इंटू 126 ये नंबर आ गया हमारा, और 124 होता है 31 इंटू 4, तो 31 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. उसके अलावा 126 होता है, दिस इज 63 इंटू 2, 63 हुआ 7 इंटू 9, तो 7 इंटू 9 इंटू 2, तो बेसिकली दिस इज 31 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, तो 7 से डिविजिबल है, 8 से है, 9 से है और 31 से है. क्योंकि ऑप्शन में 31 गिवन है, 31 विल बी द आंसर इन दिस केस. क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two typists undertake to do a job. The second typist began working 1 hour after the first. 3 hours after the first typist has begun working, there is still 9/20 of the work to be done. While assignment is completed, it turns out that each typist has done half the work. How many hours would it take each one to do the whole job individually? Individually complete job करने में कितना टाइम लगेगा दोनों टाइपिस्ट को? That is what the question is asking. Now थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, try to solve it. ठीक है, 3 hours after the typing, after the first typist has begun working, there is still 9/20 of the work to be done. यानी कितना वर्क कंप्लीट हो गया है आफ्टर 3 hours? 11/20 वर्क कंप्लीट हो गया है. ठीक है, 11/20 वर्क कंप्लीट हो गया है, लेकिन फर्स्ट टाइपिस्ट ने वर्क किया है कितना? 3 hours तब तक, और सेकंड ने किया है 2 hours बिकॉज सेकंड स्टार्टेड टाइपिंग आफ्टर 1 hour. तो 3 hour का वर्क ऑफ द फर्स्ट टाइपिस्ट एंड 2 hour का वर्क ऑफ द सेकंड टाइपिस्ट, दैट इज इक्वल टू 11/20, है कि नहीं? तो अगर फर्स्ट टाइपिस्ट की एफिशिएंसी हम ए मान लेते हैं तो 3a, सेकंड की बी प्लस 2b, दिस इज इक्वल टू 11/20. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना. बट जब भी कभी फ्रैक्शन में वर्क गिवन हो, तो इंस्टेड ऑफ एफिशिएंसी से सॉल्व करने के बेटर होगा कि वहां पे तुम सॉल्व करो कि लेट अस से फर्स्ट टाइपिस्ट इज टेकिंग ए टाइम एंड सेकंड टाइपिस्ट इज टेकिंग बी टाइम, तो 1 hour में कितना टाइप कर पाएगा? ठीक है, बजाय ए और बी एज्यूम करने के, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा. बेटर क्या होगा कि एज्यूम करो इफ फर्स्ट टाइपिस्ट इज कंप्लीटिंग द वर्क इन ए टाइम एंड सेकंड इज कंप्लीटिंग द वर्क इन बी टाइम, तो 1 hour में कितना कंप्लीट करेगा? 1/a.
तो 3 आवर्स में करेगा 3/a, और ये 2 आवर में करेगा 2/b। तो 3/a प्लस 2/b इज इक्वल टू 11/20। क्या क्लियर है? अगेन चमकना चाहिए बात कि अगर 11/20 आ रहा है, 20 क्या है, 4 × 5 है, तो पॉसिबल हो सकता है कि और बी वैल्यूज हमारी या तो 4 और 5 हो या 4 और 5 का मल्टीपल हो सकता है ऐसा, क्योंकि 4 और 5 तो नहीं हो सकती, बिकॉज 3/4 अपने आप में ही 11/20 से बड़ा है, तो उसके मल्टीपल हो सकते हैं। ए एंड बी कैन बी मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, है कि नहीं? और 8 और 10 पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यूज हो सकता है, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाते हैं। ऑप्शन से जा सकते हो फिर उसके बाद, क्योंकि ऑप्शन में तो वैल्यूज गिवन है कि नहीं? और ऑप्शन में जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 एंड 8 वैल्यूज है गिवन हियर, या तो 8 एंड 10 होगा या इसका ऑपोजिट होगा, 10 एंड 8 हो सकता है। ठीक है, बहरहाल, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, 3/8 प्लस 2/b दिस इक्वल 11/20। ये तो पहला इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है असाइनमेंट जब कंप्लीट हुआ तो इट टर्न्स आउट दैट ईच टाइपिस्ट हैज डन हाफ द वर्क। हमें नहीं पता कब कंप्लीट हुआ, बट जब भी कंप्लीट हुआ होगा, जब भी असाइनमेंट कंप्लीट हुआ होगा, तो ए हैज डन, फर्स्ट पर्सन हैज डन 50% वर्क, एंड सेकंड पर्सन हैज आल्सो डन 50% ऑफ द वर्क। और स्टार्ट में ही 1 आवर का डिफरेंस था, तो जब ये असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है, इफ द असाइनमेंट गॉट कंप्लीटेड एट टी आवर्स, तो टी आवर्स में ए मस्ट हैव कंप्लीटेड 50% वर्क, और बी ने t - 1 आवर्स वर्क किया होगा तब तक, when t - 1 आवर्स बी कंप्लीटेड 50% वर्क। इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? तो अगर ए अपना वर्क कंप्लीट, फर्स्ट अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है ए आवर्स में, तो 50% वर्क कितना टाइम में कंप्लीट करेगा? a/2 आवर्स में, a/2 आवर्स में। तो टाइम टेकन बाई ए फर्स्ट पर्सन इज a/2, और टाइम टेकन बाई सेकंड पर्सन इज b/2, क्योंकि बी अपना 50% वर्क कंप्लीट करेगा b/2 टाइम में। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 आवर का डिफरेंस है, बिकॉज फर्स्ट ने स्टार्ट किया था 1 आवर पहले, तो a/2 माइनस b/2 दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन। तो यहां से हमारी 2 इक्वेशन बन जाएंगी, इनको सॉल्व कर लोगे। क्या है क्लियर है? ठीक है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन वैल्यू आ जाएगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू, एंड हेंस a इज इक्वल टू b प्लस 2। नाउ पुट दैट इन फर्स्ट इक्वेशन, a इज इक्वल टू b प्लस 2, तो 3 अपॉन b प्लस 2 प्लस 2/b इज इक्वल टू 11/20। दिस विल बी 3b प्लस 2b प्लस 4 डिवाइड बाई b इंटू b प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11b स्क्वायर प्लस 22b, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 5b यानी 100b प्लस 80, तो 11b स्क्वायर माइनस 78b माइनस 80, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, 11 एंड 80, 11 इंटू 80 आ रहा है वैल्यू, ठीक है, और 78 है, इसको ब्रेक करना है हमें दो पार्ट्स में। प्रोडक्ट आ रहा है 11 इंटू 80 माइनस 11 इंटू 80। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर है बात कि यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अब। क्या वैल्यू आएगा, कैसे ब्रेक होगा 11 इंटू 80 में? 78, तो 88 एंड 10 में हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, 11b स्क्वायर माइनस 88b प्लस 10b माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 11b प्लस 10 इंटू b माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। अब b नेगेटिव तो होगा नहीं, तो b मस्ट बी इक्वल टू 8। यहाँ से b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, a इज इक्वल टू b प्लस 2 है, यानी कि a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही लंबा तरीका, जिसकी कतई कोई ज़रूरत इस क्वेश्चन में थी नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को, जब हमने ऑब्जर्व की ये लाइन कि बोथ हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ द वर्क व्हेन द वर्क गॉट कंप्लीटेड, ये क्वेश्चन तभी खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? क्योंकि देखो, इफ बोथ हैड कंप्लीटेड 50% ऑफ वर्क, ध्यान से मेरी बात को समझना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ऑप्शंस गिवन है हमें
कि व्हेन असाइनमेंट गॉट कंप्लीटेड इट टर्न्स आउट दैट ईच टाइपिस्ट हैज डन हाफ द वर्क। ठीक है, दोनों टाइपिस्ट ने हाफ ऑफ वर्क किया है। अब हमें ये बात क्लियर है कि हाफ वर्क करने में जो उनको टाइम लग रहा है फर्स्ट टाइपिस्ट को और सेकंड टाइपिस्ट को, उसके बीच का गैप कितना है? 1 आवर का, बिकॉज फर्स्ट टाइपिस्ट स्टार्टेड 1 आवर अर्लियर। इजंट इट सो? तो 50% वर्क कंप्लीट करने का जो टाइम गैप है दोनों के बीच का, दैट इज 1 आवर। तो 100% वर्क कंप्लीट करने के बीच का जो उनका गैप होगा वो क्या होगा? दैट विल बी 2 आवर। जो हमने इक्वेशन में बनाया है यहाँ पे यही तो लिखा, 100% वर्क कंप्लीट करने का जो टाइम गैप होगा दैट विल बी 2 आवर्स। ऑप्शंस देखो ना, ऑप्शंस में कहाँ पे 2 आवर्स का गैप आ रहा है? फर्स्ट में नहीं आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा है, फोर्थ में नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में आ रहा है 10 आवर एंड 8 आवर। दिस मस्ट बी द आंसर। अगर 2 आवर्स का गैप आ भी रहा होता एक से ज्यादा ऑप्शन में, तब भी ये पॉसिबिलिटी था कि हो सकता है 10 और 8 का अल्टरनेट दिया होता, 8 एंड 10। तो हमें पता है कि फर्स्ट वाला ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट टाइपिस्ट ज्यादा टाइम ले रहा है। भाई फर्स्ट टाइपिस्ट इज टेकिंग टी आवर्स टू कंप्लीट 50% वर्क और सेकंड इज टेकिंग टी -1 आवर्स टू कंप्लीट 50% वर्क। यानी कि ओवरऑल 100% वर्क कंप्लीट करने में भी टाइम क्या होगा? इसका होगा 2t और फॉर द सेकंड दिस विल बी 2t -2, यानी कि टाइम टेकन बाय सेकंड विल बी लेसर। तो बस यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन सी ही आंसर होगा। अगर हमारे पास दो और भी कोई वैल्यू होता, फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 10 भी गिवन होता, तो पता था वो आंसर नहीं हो सकता था, बिकॉज सेकंड इज अ फास्टर वर्कर। ऑप्शन सी क्लियरली इज द आंसर। विद जस्ट दिस इन्फॉर्मेशन कुछ भी और करने की जरूरत नहीं थी, सॉल्व नहीं करना था इसको, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम जाता, क्वाड्रिकेशन बनाते और फिर इतना कहानी करते और फंसते डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो इसको हमें ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए था ऐसे क्वेश्चन को, बाय द ऑब्जर्वेशन ओनली एंड बाय यूजिंग द ऑप्शंस। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन भी होते, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसा भी होता कि वन ऑप्शन वॉज 10 एंड 8 आवर एंड वन ऑप्शन वॉज 12 एंड 10 आवर, ऐसा भी हो सकता था कि दो ऑप्शन मैच करते, तब भी हम इनमें से किसी एक ऑप्शन को यूज कर लेते, एक ऑप्शन को यूज कर लेते। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता तो आंसर हो जाता, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरा वाला आंसर हो जाता। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, क्लियर है बात? दूसरी बात कि इफ 3 आवर्स में फर्स्ट वर्क कर रहा है, 2 आवर्स सेकंड वर्क कर रहा है और वर्क हमारा हो रहा है 11/20 विच इज 55%। तो इसके बाद में कितना और वर्क होगा जिसके बाद वर्क कंप्लीट हो जाएगा, कि रिमेनिंग वर्क इज 45%। तो एक बात तो पक्की है, इफ दे विल वर्क फॉर 3 मोर आवर्स, तो 3 आवर्स फर्स्ट वर्क करेगा, 3 आवर्स सेकंड वर्क करेगा, तब तो फिर हमारा जो वर्क है वो 55% से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अब जो वो वर्क करेंगे दैट विल बी समवॉट अराउंड 2 आवर्स के आसपास का वैल्यू होगा, या तो एक्जैक्टली 2 आवर्स होगा या 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स हो सकता है, उसके आसपास का वैल्यू होगा। तो क्या ये बात क्लियर है? यानी कि 50% वर्क जब कंप्लीट हो रहा है तो डेफिनेटली फर्स्ट जो वर्कर है हमारा दैट विल बी टेकिंग लेस देन 6 आवर्स फॉर 50%, और सेकंड वर्कर विल बी टेकिंग लेस देन 5 आवर्स, क्योंकि ये जो वैल्यूज होंगी हमारी दीज विल फॉर श्योर बी लेस देन 3 आवर्स फॉर बोथ, क्योंकि दोनों को अब टाइम तो सेम ही लगना है। तो लेस देन 3 आवर्स होगा, यानी कि लेस देन 6 आवर्स होगा 50% वर्क के लिए, लेस देन 5 आवर होगा फॉर 50% वर्क के लिए सेकंड के लिए। तो जो हमारा आंसर की वैल्यूज होंगी, क्योंकि 100% है तो इसका डबल हो जाएगा, यानी आंसर विल बी लेस देन 12 एंड लेस देन 10 रिस्पेक्टिवली फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, और गैप होगा 2 का। तो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन इनको समझोगे तो फास्ट सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में क्वेश्चंस को, अदरवाइज अटकोगे, अदरवाइज सॉल्व करोगे उनको कन्वेंशनली और ज़्यादा टाइम लोगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली एग्जामिनर भी तुमसे यही डिमांड करेगा कि तुम बजाय सॉल्व करने के इन बातों को समझ के सॉल्व करो। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर AC प्लस AB इज इक्वल टू 5AD एंड AC माइनस AD इज इक्वल टू 8, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD क्या होगा? AC प्लस AB इज इक्वल 5AD। अब दो इक्वेशन हमें दी हैं, दोनों इक्वेशन में AC आ रहा है और AD भी आ रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हमसे पूछा है, AC माइनस AD इज इक्वल टू 8 और AC प्लस AB इज इक्वल टू 5AD। ठीक है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्योंकि AD एंड AB दीज आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल एरिया चाहिए, तो फिर हमें AD साइड लेंथ तो चाहिए होगा ना, तो साइड लेंथ को AD को, क्योंकि AD इज द स्मॉलर वैल्यू, AD भी आ रहा है दोनों में, तो AD को हम x मान लेते हैं। ठीक है, AD को x मान लेते हैं। सो अगर AD को x मान लिया तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा AC प्लस AB इज इक्वल टू 5x और AC माइनस AD विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8, तो AC विल बी इक्वल टू x प्लस 8, AC विल बी x प्लस 8। ओके, और AC x प्लस 8 हो गया और x प्लस 8 प्लस AB, AC प्लस AB था तो x प्लस 8 प्लस AB इज इक्वल टू 5 टाइम्स x, तो यहाँ से AB की वैल्यू भी आ गई, AB विल बी इक्वल टू 5x माइनस x यानी कि 4x माइनस 8। मानने को तुम AC को भी x मान सकते थे, ठीक है, पर ज्यादा आसान मुझे लगा कि AD को x मानते हैं, वो ज्यादा सिंपल रहेगा, तो AB इज इक्वल 4x माइनस 8 हो गया। ठीक है, और सिंस दिस इज अ रेक्टेंगल तो AD एंड BC विल बी इक्वल, तो BC विल आल्सो बी इक्वल टू x। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें मिल गई, सॉल्व करना है इसको।
साइड्स आ रही हैं 4x माइनस 8 x एंड x प्लस 8 एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले दूसरे में अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 4x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर, दिस विल बी 16x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 64। भाई एक्स स्क्वायर ये वाला और राइट हैंड साइड का कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 16x प्लस 64, 64 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 80x, तो 16x इंटू एक्स माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली 16 तो पॉजिटिव वैल्यू है, x इंटू एक्स माइनस 5 0, तो या तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू 5 होगा, तो x कैन बी 0 और 5। अब क्योंकि x साइड लेंथ है तो 0 तो हो नहीं सकता, तो x मस्ट बी इक्वल टू 5, AD मस्ट बी इक्वल टू 5, and if AD is 5 तो 4x minus 8 यानी AB will be equal to 5 into 4 20 minus 8 12, एक साइड आ गया 5 एक आ गया 12, एरिया विल बी 5 into 12 60। देखिए रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, 60 विल बी द आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In the given figure, AB is diameter of the circle and points C and D are on the circumference such that angle CAD is equal to 30 degrees and angle CBA is equal to 70 degrees. What is the measure of angle ACD? एंगल ACD का मेजर क्या होगा? CAD गिवन है 30 डिग्रीज, CAD CA ड्रॉ करना पड़ेगा तब तो एंगल बना पाएंगे। दिस एंगल CAD दिस इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल CBA is equal to 70 degrees, CBA दिस एंगल हियर इज 70 डिग्रीज। अब एक दो बातें जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, देखो इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा होगा कि AB एंड CD आर पैरेलल, देख के ऐसा डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा है ना कि AB एंड CD आर पैरेलल, बट दे आर नॉट। ठीक है, ऐसा लग रहा है पर ऐसा है नहीं, दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, क्योंकि जैसे ही तुम पैरेलल मान लोगे, पैरेलल अज्यूम कर लोगे, तो इस क्वेश्चन में गलतियां कर सकते हो। दे आर नॉट पैरेलल, बट यस ABCD अगर पैरेलल होती तो ट्रेपेजियम होता, बट दे आर नॉट पैरेलल, बट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब कर रहा है उस क्वाड्रिलेटरल को, तो सर्कल अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, डेफिनेटली दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, सो इफ दिस एंगल इज हियर इज 70, सो एंगल ADC क्या हो जाएगा? दिस विल बी 180 माइनस 70, दिस हियर विल बी 110 डिग्रीज। और जैसे ये एंगल आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज नाउ इन ट्रायंगल ADC सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 180, दिस एंगल D इज 110, एंगल A हियर इज 30, सो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा? दिस एंगल विल बी 110 प्लस 30 इज 140, सो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 140 माइनस 40 डिग्रीज। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, also since AB is the diameter of the circle, so angle ACB क्या होगा? क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट एंगल ACB होगा क्या? सिंस AB इज द डायमीटर, तो डायमीटर के एक साइड में बनने वाला एंगल या सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। ठीक है, सेमी सर्कल में सर्कमफरेंस पे बनने वाला एंगल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, सो दिस एंगल ACB विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। और अगर ये एंगल 90 डिग्रीज है तो यहाँ से ये एंगल भी मिल गया हमको, एंगल CAB दैट विल ऑल्सो बी 20 डिग्रीज, दैट विल बी 20 डिग्रीज, बिकॉज 90 70 160, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 20 डिग्रीज। सारे के सारे एंगल हमें आइडेंटिफाई कर लिए, क्या ही क्लियर है? ठीक है, पैरेलल मानने से गलती क्या हो जाता है, अगर तुमने पहले अज्यूम कर लिया होता 20 डिग्री अगर फाइनली निकालते के उसको भी 20 मान लेते तो गलत आंसर हो जाता अपना। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल? 1:2:3, 1:1:2, 1:3:6 और नन ऑफ दीज। रेशियो ऑफ एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक बात तो पक्की है कि वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्रीज। भाई एक एंगल 90 होगा, अब इसके बाद एक एंगल अगर थीटा होगा तो बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, तो लार्जेस्ट एंगल विल बी 90 फॉर श्योर। एंड सिंस इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स इज 180,
तो टोटल सम ऑफ एंगल्स जितना भी होगा उसका हाफ विल बी वन ऑफ द एंगल्स, क्योंकि एक टोटल सम तो 180 है और वन एंगल इज 90, तो सम का हाफ विल बी वन ऑफ द एंगल्स। ऑप्शन ए में देखते हैं 1:2:3, टोटल सम आ रहा है 1+2+3 यानी कि 6, तो लार्जेस्ट एंगल विल बी 3, करेक्ट है। तो दिस कैन बी एंगल्स 30-60-90 हो जाएंगे, ठीक है, तीनों एंगल्स होंगे 30-60-90, बिकॉज 6 यूनिट्स इज इक्वल 180 डिग्रीज, सम है 180, तो एक आ गया 90, एक आ गया 60, एक आ गया 30, पॉसिबल है बिल्कुल। सेकंड केस 1:1:2, सम आ गया 4, लार्जेस्ट एंगल 2 है, हाफ है, तो ये भी पॉसिबल है। थर्ड केस 1+3+6, सम आ गया 10, और 10 तो 5 होना चाहिए था बट 5 नहीं है, 6 है, तो दिस इज अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो सी वाला केस तो नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि ये दिस विल नॉट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो डेफिनेटली दिस विल बी द आंसर। क्या लॉजिक क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person who has a certain amount with him goes to the market. He can buy 50 oranges or 40 mangoes. He retains 10% of the amount for taxi fares and buys 20 mangoes, and of the balance he purchases oranges. Number of oranges he can purchase will be 36 or 40 or 15 or 20. क्या वैल्यू होगा? So he has some amount. He can buy 50 oranges with that amount or 40 mangoes. आपकी ये कहानी हमारी परसेंटेज में है, क्योंकि इसके बाद में ही इज रिटर्निंग 10% अमाउंट, और बचे हुए अमाउंट से ही इज परचेसिंग 20 मैंगोज एंड देन फ्रॉम द बैलेंस ही इज परचेसिंग ऑरेंजेस। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू अपने टोटल अमाउंट की एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन में अमाउंट का यूज नहीं हो रहा है। सारे केसेस में हम या तो रेशियो एज्यूम कर रहे हैं, या परसेंटेज एज्यूम कर रहे हैं, या फिर क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोज हैं। ठीक है, तो 50 और 40 का मल्टीपल मान लो, एक वैल्यू 50 और 40 का मल्टीपल एलसीएम आ जाएगा 200, तो लेट अस से पर्सन हैज 200 रुपीज, इफ ही हैज 200 रुपीज ही कैन परचेज 50 ऑरेंजेस, सो 50 ऑरेंजेस परचेज कर रहा है विद 200 रुपीज, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना हो जाएगा? ₹4, 200/50। सिमिलरली ही कैन ऑल्सो परचेज, क्योंकि और है एंड नहीं है, ही कैन ऑल्सो परचेज 40 मैंगोज फ्रॉम ₹200, सो एक मैंगो का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 200/40, ₹5। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा ऐसे। और फिर हमें पता है कि 10% अमाउंट ही इज रिटर्निंग विद हिमसेल्फ फॉर द टैक्सी फेयर, तो ₹20 ही इज रिटर्निंग विद हिमसेल्फ, प्लस देन ही बाइज 20 मैंगोज, तो ₹5 का एक मैंगो है, तो इंटू 20, ₹100 का ही इज परचेजिंग मैंगोज, तो रिमेनिंग अमाउंट का ही इज परचेजिंग ऑरेंजेस विच इज ₹80, ₹4 का एक है, तो 20 ऑरेंजेस ही मस्ट हैव परचेज्ड। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, आगे करने को, क्योंकि वैल्यूज इतनी सिंपल है, परसेंटेज में भी कर सकते थे। टोटल 100% अमाउंट ही हैज, विद 10% ही विल बी पेइंग टैक्सी फेयर्स, और 20 मैंगोज ही हैज परचेज्ड, 40 मैंगोज परचेज कर सकता था, तो मैंगोज में कितना कॉस्ट उसका गया? हाफ मैंगोज परचेज किए हैं, आउट ऑफ 40 उसने 20 ही परचेज किया, 50% कॉस्ट is incurred in mangoes, 10% for taxi fare, तो बचा हुआ 40% इज फॉर ऑरेंजेस। अब टोटल ऑरेंजेस परचेज कर सकता है 50, तो 50 के 40% ही परचेज कर पाएगा, लेकिन 2/5 of 50 विल बी आवर आंसर विच इज इक्वल टू 20। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 till 1/100 into 101, 1/2 plus 1/6 plus 1/12 and so on till 1/100 into 101। तो इफ वी, जनरल टर्म क्या है इस सीरीज का? 1/n into n+1, देखिए 1 से गए 2 पे, 2 से गए 3 पे, 3 से गए 4 पे एंड सो ऑन टिल 100, 100 टर्म्स आर देयर इन टोटल। फर्स्ट टर्म है 1 into 2, सेकंड है 2 into 3, फिर है 3 into 4, तो जनरल टर्म हो गया 1/n into n+1, एंड 1/n into n+1 इज नथिंग बट 1/n minus 1/n+1। और इन जनरल फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें 1/3 एंड 1/8, तो 1/3 minus 1/8, डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का आ रहा है, 3 एंड 8 का डिफरेंस कितना है? 5 का है, तो दिस विल इफेक्टिवली बी 8 minus 3/3 into 8 और 5/24। ठीक है, सो अगर डिफरेंस हमारा 5 का है डिनोमिनेटर्स में, तो दिस विल बी 5/3 into 8। ठीक है, सो इन जनरल अगर हम कहें तो 1/n into n+5, दिस इज इक्वल टू 1/n minus 1/n+5, बट 1/n minus 1/n+5 क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 5/n into n+5, जैसे यहाँ पे हुआ, तो ठीक है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तब ये वैल्यूज इक्वल होंगे आपस में। बट जब रेफरेंस 1 का ही है तब तो स्ट्रेट अवे इक्वल है, 1/n into n+1 इज इक्वल टू 1/n minus 1/n+1। ठीक है, इसी बात को जनरलाइज करें, सो इफ वी हैव 1/n into n+a,
अगर ए का डिफरेंस है एन और एन प्लस ए में, ए का डिफरेंस है, ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज 1 बाई ए इंटू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस ए। पॉज द वीडियो, अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो एक वैल्यू अपने एंड पे लेके देख लो, एक वैल्यू लेके देखो, दो वैल्यू लेके देखो, समझो इस बात को कि अगर गैप हमारा बिटवीन डिनोमिनेटर्स ए का है तो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई ए इंटू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस ए, एन कैन टेक एनी वैल्यू व्हाटसोएवर। ठीक है, तो सिमिलर काम यहाँ पे हो रहा है, सिमिलर स्टोरी हमारी यहाँ पे है, यहाँ पे तो गैप एक का है, मामला सिंपल है, तो वी कैन राइट 1 बाई 1 इंटू 2 एज 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, बिकॉज 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 है, तो 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1, बस पहले वाले केस में क्या है, एन इज इक्वल टू 1 है। सिमिलरली एन इज इक्वल टू हो जाएगा तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, एन इज इक्वल टू है, फिर एन इज इक्वल टू 3 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या आएगा 1 बाई 100 माइनस 1 बाई 100 एंड 1। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 इसके बाद आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब पहले टर्म में हमने फर्स्ट एक्सपेंशन में हमने सेकंड टर्म कैंसिल किया, तो जो आखिरी वाला एक्सपेंशन होगा वहां पे पहला टर्म कैंसिल होगा, क्योंकि इससे पहले वाले में क्या होगा 1 बाई 99 माइनस 1 बाई 100, तो 1 बाई 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लास्ट टर्म और यहाँ से फर्स्ट टर्म, सो 1 बाई 1 यानी 1 माइनस 1 बाई 101, तो ये हो गया हमारा 101 माइनस 1 बाई 101 विच इज 100 अपॉन 101, लगभग 1 आंसर आएगा, बट प्रिसाइज आंसर विल बी 100 बाई 101, 1 विल नॉट बी द आंसर। ठीक है, अगर इन्फाइनाइट सीरीज होती तब फिर आंसर हमारा 1 हो जाता, बिकॉज लास्ट में 1 बाई इन्फिनिटी आता जो कि ऑलमोस्ट 0 होता। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज अ क्वांटिटी कंपैरिजन क्वेश्चन। First quantity, the probability of encountering 54 Sundays in a leap year, and second quantity, the probability of encountering 53 Sundays in a non-leap year. तो कौन सा वैल्यू हमारा कौन सा क्वांटिटी हमारा ज्यादा होगा? पॉज द वीडियो, सॉल्व इट। Probability of encountering 54 Sundays in a leap year. अब leap year has 366 days, or basically 2 odd days extra, 364 days plus 2 extra days, और 364 डेज हमारा क्या है? दिस इज इक्वल टू 52 वीक्स, कंप्लीट वीक्स। 52 वीक्स में तुम 2 और एक्स्ट्रा डेज ऐड कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे 54 संडेज हो सकते हैं? क्या इज दिस पॉसिबल? अगर पहला संडे होगा तो फिर उसके बाद में क्या होगा लास्ट में अल्टीमेटली, क्योंकि 2 ही एक्स्ट्रा डेज हैं, अगर फर्स्ट डे संडे होगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हें एक और संडे मिल जाएगा, 53 संडेज मिल जाएंगे, बट उसके बाद तो एक और एक्स्ट्रा दिन होगा, वो संडे थोड़ी हो सकता है, लगातार 2 संडे थोड़ी आएंगे, तो 54 संडेज का प्रॉबिलिटी इन अ लीप ईयर और इन एनी ईयर व्हाटसोएवर दैट इज 0, प्रॉबिलिटी इज 0, तो फर्स्ट क्वांटिटी तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में भी एक दिन तो एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, तो डेफिनेटली सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, ऑप्शन बी इज द आंसर। बाकी सॉल्व कर लेंगे, बट आंसर तो यही पे क्लियर हो गया कि आंसर डेफिनेटली इज फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, बिकॉज फर्स्ट तो 0 है, सेकंड इज ग्रेटर देन 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर, यानी कि 1 डे एक्स्ट्रा है इन नॉन लीप ईयर, अब वो दिन संडे ही हो, क्योंकि जब वो दिन संडे होगा तभी तो 53 संडेज होंगे, इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगा, बिकॉज दैट डे कैन बी एनी डे, कैन बी संडे, कैन बी मंडे, कैन बी ट्यूजडे, कैन बी वेडनेसडे, 7 में से कोई भी दिन हो सकता है, तो 1/7 विल बी आवर प्रॉबिलिटी। ओके, 1/7 विल द प्रॉबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर। अच्छा, प्रॉबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर क्या होगा? लीप ईयर में हमें 2 एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं, तो या तो ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, फर्स्ट डे कुड बी संडे, सेकंड कुड बी मंडे, या फिर फर्स्ट मंडे सेकंड ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, तो ये कॉन्सिक्यूटिव हो गया, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे, दिस इज सैटरडे है, सैटरडे संडे, तो संडे 53 तब भी हो सकते हैं फर्स्ट केस में व्हेन फर्स्ट इज संडे सेकंड इज मंडे, और लास्ट केस में भी इन फर्स्ट इज सैटरडे सेकंड इज संडे, यानी कि 2 आर फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 7, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7 इन अ लीप ईयर ऑफ 53 संडेज, while in a non-leap year that is equal to 1/7. Okay, is that clear? Next question. In triangle ACD, AD is equal to AC and angle C is equal to 2 times angle E. The distance between parallel lines AB and CD is h. Then which of the quantities will be higher? Which will be higher or equal? Quantities का relation क्या होगा? Area of parallelogram ABCD and area of triangle ADE. पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल ADE, क्योंकि पैरेललोग्राम ABCD है यानी कि क्लियर है हो गया कि AB एंड CD आर पैरेलल, BC एंड AD आर पैरेलल एंड AB एंड CD आर आल्सो पैरेलल,
ए बी सी डी तो पैरेलल मेंशन ही है, ठीक है। बी सी एंड ए डी आर ऑल्सो पैरेलल, दैट इज ऑल्सो मेंशन बिकॉज एरिया पैरेललोग्राम का पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी कि डेफिनेटली बी सी और ए डी भी आपस में पैरेलल ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए डी एंड ए सी आर इक्वल, फाइन। एंगल सी इज इक्वल टू टाइम्स एंगल ई, एंगल ई है 30, एंगल सी विल बी 60, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू टाइम्स एंगल ई, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी इज एच, okay. So this angle here, this is 60, okay. And now since BC and AD are also parallel, भाई जब AB और CD parallel है, BC और AD parallel होंगे कि this is a parallelogram, and if BC and AD are parallel, तो can you say that this angle here will be equal to this one? ये भी तो equal होगा, ठीक है। BC and AD are parallel, so these are equal angles, so angle CAD will also be 60 degrees, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और टोटल एंगल 150 था, टोटल एंगल हमारा 150 था, सो दिस एंगल हियर विल बी राइट एंगल बिकॉज दिस विल बी 90 बाई 150 माइनस 60 यानी कि 90 हो जाएगा। सो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल इज 90, दिस एंगल इज 30, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 60। नो फोकस ऑन ट्रायंगल सी ए डी, ट्रायंगल सी ए डी में क्या हो रहा है, दिस एंगल इज 60 एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल है बिकॉज ए सी इज इक्वल टू ए डी, and when two sides are equal, तो angles opposite them are also equal, ठीक है। so these angles will also be equal, this angle and this angle, these two will also be equal। अब एक एंगल 60 हो गया तो इन दोनों का सम 120 होगा, और क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों भी 60-60 हो जाएंगे, these will also be 60 and 60 only। so in triangle ACD all angles are equal to 60 degrees each, so this will basically be an equilateral triangle, all sides will be equal, equilateral triangle। and similarly जैसे कि this angle is 60, so this here will also be 60, this will also be 60, so basically this will also be equilateral, so all sides AB, BC, CD and AD all sides will be equal, ये सारी साइड्स हमारी इक्वल होंगी। क्या ये अप्रिशिएट कर पाओगे, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। सो इफ एक साइड को अगर हम A एज्यूम कर लें, दिस विल ऑल्सो बी ए, दिस विल ऑल्सो बी ए, दिस विल ऑल्सो बी ए, सारी साइड्स हमारी ये होंगी, और डायगोनल भी हमारा जो है AD AC दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए। Now focus on triangle ADE, because triangle ADE right angle triangle है, one angle is 90, one is 30, one is 60, तो 90 30 60 वाले ट्रायंगल में क्या होता है साइड्स का रेशियो, 90 30 60, स्मॉलेस्ट साइड इज अपोजिट 30 डिग्री एंगल, इफ दैट इज इक्वल टू 1, तो 60 डिग्री के एंगल को अपोजिट की साइड होगी √3 और 90 के अपोजिट साइड विल बी 2, तो 1:√3:2 दैट इज द साइड का रेशियो। तो 30 डिग्री के सामने साइड हमारा क्या है एक्चुअल में, दैट इज ए, 60 के सामने साइड विल बी √3 है, एंड हाइपोटेन्यूज और DE विल बी इक्वल टू 2a। तो अब एरिया निकाल पाएंगे पैरेललोग्राम का भी और ट्रायंगल ADE का भी। नाउ पैरेललोग्राम इज मेड ऑफ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ABCD, बिकॉज ACD का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू A स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी ट्वाइस ऑफ दैट, 2 times of √3/4 A square, so that will be √3/2 A square, and area of triangle ADE will be 1/2 into base into height, base हो गया A और height होगी √3 A, this will also be √3/2 A square। So area of both triangle as well as parallelogram are equal, and hence first is equal to second, option C will be the answer in this case। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं सेशन में, आई बिलीव जो भी डिस्कशन समझ में आएगा, और बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। क्वांटिटी पे भी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, बिकॉज लास्ट ईयर भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था क्वांटिटी पे, तो 1-2 क्वेश्चन हमने कर लिए, सो दैट वहाँ पे भी हम कंफर्टेबल रहें। एग्जाम में अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है, और कैसे अटेम्प्ट करना है अप्रोच भी समझ ही गए होगे, ठीक है, ऐसे केसेस में। और सिमिलर डेटा सफिशिएंसी का तो हमने प्रॉपर सेशन किए ही हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके लिए अलग से डील करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, वहाँ पे क्या देखना है अल्टीमेटली कितना डेटा हमारे सफिशिएंट है। सो ऑब्वियसली दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन सेपरेट सेशंस, और इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी बातें समझ आएंगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रहता है, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।